Dear students, today we have to discuss the concept of acidic nature of phenol. This is a particular video of an acidic nature of the phenol and its derivatives. This is belong to the lesson number 11, alcohol, phenol and ethers. So first of all friends, we are going to discuss about why phenol is more acidic than alcohol. This is the basic, and then after we are going to discuss about the MCQs. Okay friends, so first, when we are comparing the acidic character of alcohol and phenol, we have to react alcohol with water. According to Lorentz-Foster acid-base principle, alcohol is act as an acid and water is act as a base. Acid releasing H plus produce RO minus, this is your conjugated base, and H3O plus, which is your conjugated acid. Right friends? This is called your alkoxide ion. Okay friends? Now same as when phenol is react with water, phenol means benzene के ऊपर वो H, right? उसका H2O के साथ reaction करेंगे. It is also act as an acid and water act as a base. When the reaction is take place, acid releasing H plus produce RO minus. This is your phenoxide ion plus H3O plus. Acid by releasing H plus produces conjugated base, and base by gaining H plus produce conjugated acid. So this is phenoxide, alkoxide ion, and this is your phenoxide ion. Now friends, why phenol is more acidic than alcohol? तो उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. तो दिस इज द phenoxide ion, negative charge on oxygen with 3 lone pair of electron. Now friends, these out of these 3 lone pair, 1 lone pair came between this carbon and oxygen. So the pi bond presence between first and second carbon is migrated towards to the second carbon and give this kind of resonating structure. This is the negative charge, double bond. ये पाई बॉन्ड, ये जो लोन पेयर है वो ये सिंगल बॉन्ड के साथ ज्वाइंट हो गया, मतलब डबल बॉन्ड हो गया है, और ये नेगेटिव चार्ज माइग्रेट होकर आ गया सेकंड पोजीशन के ऊपर, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ आ गया पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट. नाउ अब क्या होगा दोस्तों, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है सेकंड थर्ड के बीच में आएगा, तो थर्ड और फोर्थ वाला आ जाएगा कहाँ पे, फोर्थ पे. तो अपने को मिलेगा दिस काइंड ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन. Sorry, double bond, and here there will be a negative charge. Again, ये negative charge यहाँ आएगा, ये pi bond यहाँ चला जाएगा. We can get this kind of resonating structure of phenol. Double bond हो, and again ये जो है वो आ जाएगा छठा और पहले कार्बन के बीच में, और ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो वापस आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर. तो वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ऑल्सो दिस स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4 and 5. This first and 5 are also resonating structure of each other. Okay. This resonance stabilize this phenoxide ion. Due to this stability, we can say that phenol is more acidic than alcohol. तो पहला रीजन हुआ कि why phenol is more acidic than alcohol. तो phenoxide ion is stabilized with resonance. Due to this resonating structure, we can say that phenol is more acidic than alcohol. Number 2, when we are doing the litmus test, तो अगर अल्कोहल में हम ब्लू लिटमस जो पेपर है वो डैप करेंगे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. बट व्हेन वी आर डैपिंग ए ब्लू लिटमस पेपर इन अ फिनॉल सॉल्यूशन, देन वी कैन से दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेड व्हिच इंडिकेट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल. मतलब फिनॉल जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या बनाता है, रेड, व्हिच इज इंडिकेट द एसिडिक कैरेक्टर. एंड थर्ड वन, अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद aqueous NaOH. aqueous NaOH के साथ अल्कोहल रिएक्शन करता नहीं है, और फिनॉल aqueous NaOH के साथ रिएक्शन करके बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड. ये भी बताता है
कि phenol is more acidic than alcohol. So these three are the reason. Number one, resonating structure of the phenoxide ion, right? Number two, litmus test of phenol, blue litmus paper to red, and it is neutralized by aqueous solution like NaOH. अल्कोहल NaOH के साथ रिएक्शन करता नहीं है. Due to all this reaction, we can say that phenol is more acidic than alcohol. Okay, and one corner question, friends. Alcohol and phenol both are act as a Bronsted acid. Alcohol and phenol both are act as a what? Bronsted acid. ये भी MCQ आपको पूछ सकते हैं. तो ये बेसिक बात हो गई दोस्तों. अब हम लोग बात करेंगे फिनॉल और उसकी डेरिवेटिव्स, मतलब ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन के ऊपर अगर अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप है तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा और कौन कम एसिडिक होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे. पहले ये वीडियो आप समझ लो, फिर हम इसके बाद जो MCQ सीट करेंगे विच इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, और इसके बेस के ऊपर ही है. ओके फ्रेंड्स, now students we have to discuss the PDF MCQ of the concept of acidic nature of phenol and its derivative. फ्रेंड्स, आपने सबसे पहले आगे जो मैंने टॉपिक समझाया कि why phenol is more acidic than alcohol, वो वीडियो बराबर से समझ लिया होगा. बराबर. अब यहाँ पे एक चीज याद रखने का कि अगर फिनॉल के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जैसे NO2CN और हेलोजन ग्रुप, तो वो क्या करते हैं, which स्टेबलाइज द फिनॉक्साइड आयन. स्टेबलाइज कैसे हो गए, क्योंकि वो ऑक्सीजन, फिनॉल का जो फिनॉक्साइड आयन है उसके ऊपर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर का लोन पेयर को अपनी ओर ले लेता है. ड्यू टू दिस रीजन इट स्टेबलाइज द फिनॉक्साइड आयन व्हिच इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ. मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो दे आर बेसिकली एसिडिक इन नेचर, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो फिनॉक्साइड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, इसलिए फिनॉक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज करेंगे. ड्यू टू दिस रीजन वी कैन से दैट एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. तो आपको चेक करने का कि फिनॉल के अंदर कौन सा ग्रुप अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. बराबर. तो ये कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा है. अब हम पहला क्वेश्चन समझते हैं. तो यहाँ दो क्वेश्चन का हम पेयर डिस्कस करेंगे साथ में फ्रेंड्स. पहला और दूसरा क्वेश्चन एक साथ में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड. बराबर. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर एसिडिक, और दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लेस एसिडिक. दोनों में ऑप्शन सेम है. पहला ऑप्शन है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया ये, दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल. ऑप्शन नंबर बी लिखा है मैंने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. ऑप्शन नंबर सी मैंने लिखा है मेटा नाइट्रोफिनॉल. ये हो जाएगा आपका मेटा नाइट्रोफिनॉल. और ऑप्शन जो डी है वो हो जाएगा क्या आपका फिनॉल. तो आपको पूछा गया पहले क्वेश्चन में कि कौन ज्यादा एसिडिक है और दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया कौन लेस एसिडिक है. तो पहले चेक करो कौन सा ग्रुप अवेलेबल है फिनॉल में, NO2. NO2 कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. मतलब वी कैन से दैट पैरा, ऑर्थो एंड मेटा ऑल नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल. आर मोर एसिडिक देन whom फ्रेंड्स, फिनॉल. ओके, तो यहाँ पे उसके कुछ रीजन समझते हैं कि NO2 ग्रुप have a -R and -I इफेक्ट. ये दोनों को कौन कौन सा इफेक्ट है, -R and -I इफेक्ट. बट -R इफेक्ट is more effective than -I इफेक्ट. फिनॉल में क्या होता है, -R इफेक्ट प्रीडोमिनेंट -I इफेक्ट. मतलब जो भी रीजन मिलेगा आपको -R इफेक्ट की वजह से मिलेगा. बराबर. ओके फ्रेंड्स, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑर्थो, पैरा एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल. फिनॉल की कंपैरिजन में दोस्तों ऑर्थो, पैरा एंड मेटा नाइट्रो कैसे होंगे, ज्यादा एसिडिक होंगे.
अब आप याद रखो दोस्तों, माइनस आर इफेक्ट is more applicable at ortho and para position. ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर माइनस आर इफेक्ट ज्यादा एप्लीकेबल होती है एट मेटा पोजीशन. माइनस आर इफेक्ट is not applicable. So we can say that क्या हो जाएगा, so ortho and para nitrophenol are more acidic. Ortho and para nitrophenol are more acidic than whom? Meta nitrophenol. Then meta नाइट्रोफिनॉल. ओके दोस्तों, और अब हम बात करेंगे कि ऑर्थो एंड पैरा में कौन ज्यादा एसिडिक होगा. तो हम बोलेंगे कि इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इंट्रा मोलेक्युलर H बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व. इसके अंदर कौन सा H बॉन्डिंग होगा? इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग होगा. सो इट इज लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल. उसका मतलब क्या होगा? तो विच वन इज मोर एसिडिक? तो आपका पहले में आंसर आएगा ए, और लेस एसिडिक पूछा गया तो आपका आंसर आएगा क्या? डी. बराबर. फिर से एक बार समझ लेते हैं एनोडो ग्रुप का कौन कौन सा इफेक्ट है. माइनस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट. वी कैन से दैट माइनस आर इफेक्ट इज प्रीडोमिनेंट. माइनस आर इफेक्ट मतलब जो भी रिजल्ट मिलेगा वो माइनस आर इफेक्ट की वजह से मिलेगा. ऑर्थो पैरा एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल. बराबर. याद रखो माइनस आर इफेक्ट इज एप्लीकेबल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. मेटा पोजीशन के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं है. So we can say that ortho and paranitrophenol are more acidic than metanitrophenol. और orthonitrophenol में क्या मिलता है दोस्तों? We can say that intramolecular hydrogen bond, और इसमें intermolecular hydrogen bond होता है. So paranitrophenol is more acidic while phenol is less acidic. तो ये बात किसके बारे में हुआ दोस्तों? नाइट्रोफिनॉल्स के बारे में. क्या? नाइट्रोफिनॉल. टॉपिक कौन सा था? नाइट्रोफिनॉल्स. ओके फ्रेंड्स, तो ये बात हो गया क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. अब हम आगे बढ़ेंगे 3 एंड 4 के बारे में. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिस्कस द एमसीक्यू नंबर 3 एंड 4. अभी हमने बात किया था नाइट्रोफिनॉल्स के बारे में. अब आएगा हेलोफिनॉल्स. हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. और दूसरी बात बता दो दोस्तों, सपोज मैं क्लोरीन लेता हूं तो क्लोरीन के पास क्या होगा दोस्तों? लोन पेयर्स होंगी. बराबर. ये लोन पेयर की वजह से ये लोग प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं. याद रखना कि एनोडो ग्रुप था, उसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं था और रेजोनेंस स्ट्रक्चर था, इसलिए वो माइनस आर इफेक्ट दिखाता था. इसमें हेलोजन, हर एक हेलोजन के पास क्या है? लोन पेयर, इसलिए वो क्या बताएगा? प्लस आर इफेक्ट. एज वेल एज वो लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब माइनस आर इफेक्ट भी दिखाएंगे. मतलब हेलोजन में दो इफेक्ट दिखने को मिलता है. कौन कौन सा? प्लस आर इफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एंड माइनस आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो अब हम चेक करेंगे आपको जो पहला ऑप्शन दिया है कौन सा है? ऑर्थोक्लोरोफिनॉल. तो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल में क्या होगा? तो ये हो गया आपका ऑर्थोक्लोरोफिनॉल. बी में क्या होगा? तो इट इज मेटाक्लोरोफिनॉल. दिस इज योर मेटाक्लोरोफिनॉल. सी में क्या होगा? पैराक्लोरोफिनॉल. ये पैराक्लोरोफिनॉल हो जाएगा आपका. और डी में बोला गया क्या? आपको सिर्फ बोला गया फिनॉल. बराबर. तो यहाँ पे कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन कम एसिडिक होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है.
तो इसमें याद रखने का दोस्तों, हेलोजन ग्रुप हैव ए प्लस आर एंड माइनस आई इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट है, लेकिन हम लिखेंगे बट माइनस आई इफेक्ट is more effective, मतलब is predominant plus R effect. Minus R effect is more effective than plus R effect. मतलब आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा? माइनस R effect की वजह से। दूसरी बात, ये जो हेलोफिनॉल्स में है, as the distance increases, डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों? इंक्रीज होगा। ये ब्रैकेट में एरो ऊपर मतलब इंक्रीज। सो वी कैन से दैट व्हाट वी कैन से एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। डाउन एरो का मतलब क्या होगा? डिक्रीज। उसका मतलब क्या होगा? क्या बोल सकते हैं? तो व्हाइल ट्रैवलिंग टू ऑर्थो टू मेटा टू पैरा, ऑर्थो मेटा और पैरा जाएंगे तो क्या होगा? एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। एसिडिक नेचर क्या होगा दोस्तों? डिक्रीज होगा। तो ये दोनों के ऊपर से हम जजमेंट लेंगे। तो पहले देख लो, इसमें हेलोजन ग्रुप अवेलेबल है, फिनॉल में हेलोजन नहीं है। और हेलोजन का कौन सा इफेक्ट एप्लीकेबल है? माइनस आई इफेक्ट, बराबर। Due to this, we can say that ortho, meta and para chlorophenols are more acidic than phenol. बराबर? ओके। तीसरी बात, अब क्या आएगा? आपको चेक करने का, इसमें डिस्टेंस कहाँ पे है? तो ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। डिस्टेंस नजदीक कहाँ है, दूर कहाँ है? तो ऑर्थो पोजीशन में नजदीक डिस्टेंस है, मेटा पैरा पोजीशन में डिस्टेंस दूर है। तो हम बोलेंगे क्या? वी कैन से दैट, तीसरे में आंसर आएगा कौन सा? फर्स्ट ए। और चौथा क्वेश्चन में आंसर आएगा क्या? डी। मोर एसिडिक कौन होगा? तो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल इज मोर एसिडिक, व्हाइल फिनॉल जो होगा वो क्या होगा? लेस एसिडिक होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ सकते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा दोस्तों? स्मॉलर टू बिगर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर ले लेते हैं पहले, स्मॉलर टू बिगर, राइट। इंक्रीजिंग ऑर्डर जो छोटा है उसको पहले लिखने का, तो हम लिखेंगे क्या? डी लेस देन सी लेस देन बी लेस देन ए। और अगर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोला होता तो बिगर टू स्मॉलर लिखूंगा तो वो हो जाएगा क्या? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। बराबर दोस्तों। तो ये हो गया आपके आंसर रिगार्डिंग टू होम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। याद रखने का, हेलोजन में कौन कौन सी दो इफेक्ट है? प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट किसकी वजह से है दोस्तों? इसके ऊपर जो लोन पेयर अवेलेबल है उसकी वजह से प्लस आर इफेक्ट है। और माइनस आर इफेक्ट वो खुद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए वो माइनस आर इफेक्ट दिखाता है। बट माइनस आर इफेक्ट प्रीडोमिनेंट प्लस आर इफेक्ट। सो वी कैन से दैट ऑर्थो, मेटा एंड पैरा क्लोरोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। और ऑर्थो, मेटा और पैरा में ज्यादा एसिडिक कौन है? तो बोला एज द डिस्टेंस increases acidic character decreases। तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। और कम एसिडिक कौन होगा? पैराक्लोरोफिनॉल। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 हुए। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे का कॉन्सेप्ट भी हेलोफिनॉल्स के ऊपर का ही है। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिस्कस द एमसीक्यू नंबर 5th एंड 6th। ये भी बेस्ड है हेलोफिनॉल्स के ऊपर। Question is, which of the following is more acidic and which of the following is less acidic? ऑप्शन ए जो दिया है आपको वो है आपका ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। ऑप्शन बी जो है आपका ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। ऑप्शन सी जो है आपका वो है ऑर्थोआयोडोफिनॉल। एंड जो ऑप्शन डी है आपका वो है कौन सा? ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल। तो ज्यादा एसिडिक कौन और कम एसिडिक कौन? तो इसके लिए रीजन हम समझ लेते हैं।
सबसे पहला रीजन क्या है? तो हम बोलेंगे F फ्लोरीन, F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव due to this it have a intramolecular H bond, so it is weak acid. ये जो आपका फ्लोरीन जो है ये OH के साथ क्या बनाता है? Intramolecular H bond due to its more electronegative nature, so we can say that it is weak acid, right? अब बाकी के रहे ये तीन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, so we can say that chlorine to bromine and bromine to iodine, where to where chlorine to bromine, bromine to iodine, we can say that electronegativity decreases, so acidic nature also decreases. डाउनवर्ड का मतलब क्या समझने का? डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या हो गया? आपके सामने चार ऑप्शन है। फ्लोरीन जो है वो क्या बनाएगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए वो वीक एसिड होगा। और अगर पूछा गया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीन बाकी रहे आपके सामने, तो क्लोरीन टू ब्रोमीन, ब्रोमीन टू आयोडीन जैसे आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, इसलिए उसका एसिडिक कैरेक्टर भी कम होगा। मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो पांचवें क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा ए, और 6th वन में आपका आंसर होगा कौन सा? डी। तो अब आपको यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ सकते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? स्मॉलर टू बिगर, तो आंसर होगा डी लेस देन सी लेस देन बी लेस देन ए। और डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर मैंने पूछा बिगर टू स्मॉलर, तो आंसर होगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। तो दोस्तों आपको जेईई नीट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले, बराबर। और कुछ के टीसी अपने एग्जाम होते हैं उसमें पूछते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक। लेकिन अगर ये रीजन आपको बराबर पता है तो यू कैन एबल टू अटेम्प्ट एनी आंसर, राइट फ्रेंड्स। तो ये हो गया हेलोफिनॉल्स। अब हम बात करेंगे मिथाइल फिनॉल मतलब क्रेसॉल्स के बारे में। Now students, we have to discuss the MCQ number 7 and 8 and the question is which one of the following is more acidic and which one is following is the less acidic। ये दो क्वेश्चन है 7 और 8 का। ऑप्शंस आर सेम। हम पहला ऑप्शन चेक करेंगे फिनॉल, फिर दूसरा ऑप्शन है आपके सामने दूसरा ऑप्शन है कौन सा? मेटा मिथाइल फिनॉल, जिसको हम बोलेंगे क्या? मेटाक्रेसॉल। फिर तीसरा ऑप्शन है आपके सामने क्या? पैराक्रेसॉल। और जो लास्ट ऑप्शन है आपके सामने, वो लास्ट ऑप्शन है कौन सा? तो फिनॉल के ऊपर ऑर्थो पोजीशन पे CH3। अब दोस्तों सबसे पहले चेक करो कि इसके अंदर ये CH3 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है। तो यहां पे बोलेंगे CH3 मिथाइल ग्रुप हैव प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं EDG। एंड उसका दूसरा इफेक्ट कौन सा है? तो वी कैन से हाइपर कॉन्जुगेशन। दो चीज दिखाई देती है, कौन कौन सी? मिथाइल ग्रुप का कौन सा? प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। ड्यू टू दिस ऑर्थो, मेटा एंड पैराक्रेसॉल आर वीक एसिड देन फिनॉल। फिनॉल की कंपैरिजन में
ऑर्थो, मेटा एंड पैरा वो सब कौन से हो जाएंगे? वीक एसिड। अब दोस्तों हम बात करेंगे एट मेटा पोजीशन ओनली Plaza effect is observed। याद रखो दोस्तों, मेटा पोजीशन के ऊपर हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट, इनमें से कुछ भी एप्लीकेबल होता नहीं है। मिथाइल ग्रुप की दो इफेक्ट है, प्लस है एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो मेटा पोजीशन पे एप्लीकेबल नहीं है। सो वी कैन से दैट सो मेटाक्रेसोल is more acidic than ortho and paracresol। ये ज्यादा एसिडिक होगा किसकी कंपैरिजन में? ऑर्थो एंड पैरा। और अब ये दोनों की कंपैरिजन के बारे में बात करें तो वी कैन से दैट एट ऑर्थो पोजीशन मोर इफेक्ट of hyperconjugation हाइपरकंजुगेशन का कौन सा इफेक्ट होगा? सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। सो इट इज वीक एसिड देन पैराक्रेसोल। पैराक्रेसोल की कंपैरिजन में वो कैसा हो जाएगा? वीक एसिड। तो आपका 7th में आंसर क्या आएगा? ए। और 8th के अंदर आंसर क्या आएगा? डी। ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा फिनॉल। और ऑर्थोक्रेसोल जो है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? वीक एसिड। ओके, तो ये रीजन याद रखने का, इसके ऊपर से आप आंसर लिख सकते हो। सेम इज आपको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो स्मॉलर टू बिगर लिखेंगे, तो डी लेस देन सी लेस देन बी लेस देन ए। और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो बिगर टू स्मॉलर लिखेंगे, तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। तो इस तरह से दोस्तों क्रेसोल मतलब मिथाइल फिनॉल का हम एसिडिक कैरेक्टर डिस्कस कर सकते हैं। ये रीजन याद रखने का, आप कोई भी आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन में मैंने सिर्फ एसिड मोर एसिडिक और लेस एसिडिक पूछा है, आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टू मिथॉक्सीफिनॉल। Now students, we have to discuss the MCQ number 9 and 10 which is based on methoxyphenol। तो MCQ number 9 as well as 10 दोनों में क्वेश्चन सिमिलर है, पूरी सीट के अंदर क्वेश्चन सिमिलर है। कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक। ऑल क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो अब आएंगे मिथॉक्सीफिनॉल। तो पहला ऑप्शन जो आपके सामने मैंने रखा है वो कौन सा है? मेटा मिथॉक्सीफिनॉल। मतलब बेंजीन के ऊपर यहाँ पे OH, मेटा पोजीशन के ऊपर वो CH3। दूसरा है पैरामिथॉक्सीफिनॉल। दूसरा जो लिखा गया है वो है आपका ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। तीसरा है पैरामिथॉक्सीफिनॉल। और दोस्तों जो लास्ट वन है वो है फिनॉल। बराबर दोस्तों। और क्वेश्चन कौन सा है? 9th में which of the following is more acidic, which of the following is less acidic। तो दोस्तों हम यहाँ समझते हैं कि मिथॉक्सी ग्रुप का इफेक्ट क्या होगा। तो याद रखो दोस्तों, OCH3 ग्रुप में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, बराबर। तो OCH3 ग्रुप हैव ए लोन पेयर on oxygen atom। Due to this lone pair, we can say it have a plus R effect, and oxygen atom is more electronegative। So it have a minus I effect।
जो OCH3 में ऑक्सीजन एटम है उसके ऊपर लोन पेयर की वजह से उसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम इज मोर, सो वी कैन से व्हाट, इट हैव ए माइनस आई इफेक्ट। ओके फ्रेंड्स, अब याद रखो ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन OCH3 group gives electron pair to OH group। जो प्लस आर इफेक्ट है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर दिखाई देगी, उसकी वजह से ये जो OCH3 ग्रुप है वो जो ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, सो दे आर लेस एसिडिक, so we can say that metamethoxy phenol is more acidic। समझ में आया दोस्तों? पहले समझ लो OCH3 group have a lone pair on oxygen atom, due to this it have a plus R effect and oxygen atom is more electronegative, so it have a minus I effect। okay दोस्तों, due to this minus I effect we can say that ortho, meta and para methoxyphenol are more acidic than phenol। दूसरी बात, ये जो OCH3 ग्रुप का प्लस आर इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर एप्लीकेबल है, इसकी वजह से ये लोग अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कहां डोनेट करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर डोनेट करेंगे, इसीलिए ऑर्थो एंड पैरा methoxyphenol आर लेस एसिडिक देन मेटामेथॉक्सीफिनॉल, बराबर। और लास्ट में हम बोलेंगे कि OCH3 ग्रुप हैव ए मोर स्टेरिक इफेक्ट। OCH3 ग्रुप का स्टेरिक इफेक्ट कैसा है, ज्यादा है, सो वी कैन से व्हाट, सो ऑर्थोमेथॉक्सी phenol is more acidic than para-methoxyphenol, बराबर। तो दोस्तों आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से इफेक्ट एप्लीकेबल है। याद रखने का, ये जो मेटा पोजीशन के ऊपर OCH3 का प्लस आर इफेक्ट कभी एप्लीकेबल होता नहीं है। आगे में भी दोस्तों मैं बोल चुका हूँ कि मेटा पोजीशन के ऊपर कभी भी प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट, आइदर हाइपर कॉन्जुगेशन कभी भी एप्लीकेबल होता नहीं है, बराबर। वो सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, बराबर। दूसरी बात, यहाँ OCH3 ग्रुप का स्टेरिक इफेक्ट मतलब क्राउडिंग यहाँ पे ज्यादा है, उसकी वजह से उसका एसिडिक कैरेक्टर पैरामेथॉक्सीफिनॉल की कंपैरिजन में ज्यादा होगा, बराबर। तो आपको पूछा गया क्वेश्चन कि मोर एसिडिक कौन है, तो 9th वन में आपका आंसर आएगा A और 10th वन का आपका आंसर आएगा D। तो मोर एसिडिक बोले तो मेटामेथॉक्सीफिनॉल, लेस एसिडिक पूछे तो फिनॉल, बराबर। अब आपको इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बोले, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या, स्मॉलर टू बिगर, मतलब क्या लिखेंगे, D लेस देन C लेस देन B लेस देन A। और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला गया तो बिगर टू स्मॉलर लिखेंगे, तो क्या होगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। तो दोस्तों इस तरह से आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का है। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ स्टूडेंट्स, we have to discuss the MCQ number 11 and the question is which of the following compound is more acidic। option are 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, मतलब बेंजीन के ऊपर OH, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2। दिस इज योर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल which is also called your पिक्रिक एसिड। ओके फ्रेंड्स, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल
ये उसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। तीसरा ऑप्शन सी दिया है आपको 2-नाइट्रोफिनॉल, दिस इज योर 2-नाइट्रोफिनॉल। एंड लास्ट ऑप्शन इज फिनॉल। लास्ट ऑप्शन इज व्हाट? फिनॉल। तो दोस्तों ये हो गए आपके ऑप्शन, सब चेक करो। यहाँ पे NO2 ग्रुप है, इसमें 3 NO2, इसमें 2, इसमें 1 और उसमें NO2 ग्रुप ही नहीं है। NO2 ग्रुप कौन सा है दोस्तों आपका? तो इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जब अवेलेबल होंगे तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो जिसमें ज्यादा NO2 ग्रुप होंगे वो कैसे रहेंगे? ज्यादा एक्टिव रहेंगे। तो हम बोलेंगे क्या? मोर एसिडिक कौन होगा? which one is more acidic? Your option is A. बराबर। Now 12th one. The question is which of the following is more acidic? Options दिए गए हैं आपको, सेम ऑप्शन है। सेम ऑप्शन मतलब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 2,4,6 ट्राइमिथाइल, 2,4,6 ट्राइमिथाइल फिनॉल। NO2 की जगह CH3 ग्रुप आ गए। दूसरा ऑप्शन दिया गया आपको ये वाला 2,4 डाइमिथाइल फिनॉल। सी ऑप्शन दिया गया आपको 2-मिथाइल फिनॉल। ये हो गया आपका 2-मिथाइल फिनॉल। और लास्ट ऑप्शन जो है डी, वो है सिर्फ फिनॉल। तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा ऐसा बोला गया। देखो CH3 ग्रुप जो है उसका कौन सा इफेक्ट है? दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब प्लस आई इफेक्ट होगा। और प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? तो फिनॉक्साइड आयन को वो डिस्टेबलाइज कर देता है। ड्यू टू दिस डिस्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन उसका एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? डी ऑप्शन, फिनॉल। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने फिनॉल और उसके डेरिवेटिव्स के रेफरेंस के अंदर जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे वो हमने यहाँ पे निकाले हैं। बराबर दोस्तों, मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से दोस्तों ये टॉपिक आपको समझाने का ट्राई किया है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप ये PDF को हमारी वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। और ये जो मेरे YouTube चैनल है और वेबसाइट है अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Dear students, we have launched our website www.revisioneducation.com to learn NCERT 12th chemistry subject, English and Gujarati medium. In this website, all lessons contain videos of illustration, in-text question and exercise question. Also, MCQ videos for the competitive exams like JEE, NEET and GUJCAT are also available. Cost of above all these are only ₹999 per year. Some demo videos are also available on our YouTube channel Revision Educations. Friends, kindly like, share and subscribe our channel. Thank you very much.